بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما صلوات عزیزان گرامی، محرم کی آج پہلی تاریخ ہے۔ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس میں خدا فرماتا ہے کہ ہم نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا اور وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور کامیابی کی سند اللہ نے دی ہے کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بنائیں۔ جناب ابراہیم نے جب یہ سنا امامت کا منصب عہدہ، تو فرماتے ہیں پالنے والے ومن ذریتی، پالنے والے میری نسل میں جو ہے امامت کو قرار دے۔ اللہ نے جواب دیا لا ینال عہد الظالمین، امامت کا عہدہ منصب جو ہے وہ کسی ظالم کو نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی امام منصوص من اللہ ہوگا وہ مظلوم ہوگا، ظالم نہیں ہوگا۔ صلوات دے جناب۔ اب آمادہ ہے سننے کے لیے، تو کچھ باتیں میں عرض کروں گا۔ وہ یہ کہ آج پہلی مجلس شیرازی ہاؤس میں نے پڑھی، ایک دو باتیں میں نے وہاں ذکر کی، لہذا میں ان کو یہاں دہرائے دے رہا ہوں کہ اس لیے کہ آپ لوگ وہاں نہیں تھے۔ محرم آتا ہے، مولوی اور ملا کچھ لوگ جو ہے وہ عزاداری کے خلاف جو ہے وہ پروپگنڈا کرتے ہیں۔ یہ بدعت ہے، مجلس بدعت ہے، ماتم بدعت ہے، کالا کپڑا پہننا بدعت ہے، نوحہ پڑھنا بدعت ہے، ماتم کرنا بدعت ہے۔ طرح طرح کے ہر سال یہی ایک اعتراض ہے جو کیا جاتا ہے اور اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو مسلمان ہے، میں لفظ شیعہ سنی نہیں بلکہ مسلمان، وہ مسلمان کہ جو امام حسین سلام کی عزاداری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ان کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسے دقیانوس مسلمان ہیں کہ سال کا پہلا دن اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے انسان کو پہلے دن جو ہے خوشی کرنا چاہیے، پٹاخے چھوڑنا چاہیے، لیکن یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو سال کے پہلے دن رو کے ماتم کر کے اپنے لیے منحوس بنا لیتے ہیں؟ یہ سوال صحیح ہے؟ اب میں اس کا جواب دوں۔ ہم آپ سب جو ہے وہ کس کی نسل میں ہے؟ کس نبی کی؟ آدم کی۔ اسی لیے ہم آدمی کہلاتے ہیں۔ پہلے یہ بتاؤ ہمارے بابا آدم
جب اس دنیا میں آئے تھے تو ہنستے ہوئے آئے تھے یا روتے ہوئے؟ رو رہے تھے. تو جناب آدم کا اس زمین کے اوپر آنا اور ہونا ان کے لیے منحوس نہیں ہوا، ہمارے لیے منحوس ہو گیا. اور آپ کو بتائیں، رونا جو ہے اگر حرام ہوتا، ناجائز ہوتا، بدعت ہوتا، تو میں اس فتویٰ دینے والے سے پوچھتا ہوں کہ تو اپنی اماں سے پوچھ کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو ہنستا ہوا آیا تھا یا روتا ہوا آیا تھا؟ تو حضور کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، اور اگر نہ روئے تو ماں باپ رشتہ دار جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اس زندہ نہیں ہے. روئے تو زندہ، نہ روئے تو مردہ. تو حضور سمجھ لیجئے جو قوم روتی ہے وہ زندہ ہے، جو نہیں روتی ہے وہ مردہ ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے. اور آپ کو بتاؤں، دیکھیں ہم اگر کسی نبی کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، امام کو مانتے ہیں یا اصحاب کو مانتے ہیں، تو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس کو مان رہے ہیں اس کے حکم کو، اس کی بات کو بھی ہم مانیں، ورنہ ماننا بیکار. میں مثال دوں قرآن مجید سے. اللہ نے اعلان کیا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. یہ برابر سنتے ہیں آپ؟ تو جب اللہ نے روح پھونکی تو سارے ملائکہ سجدے میں چلے گئے. کون نہیں گیا؟ ابلیس. پہلے آپ کو معلوم ہے ابلیس جو ہے اللہ کا عبادت گزار بندہ تھا یا نہیں تھا؟ اتنی عبادت کی کہ اللہ نے اس کو بزم ملائکہ میں بلا لیا عبادت کی بنیاد پر. لیکن جب امتحان کی منزل آئی تو سجدے میں نہیں گیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ پالنے والے یہ تیری عبادت کرتا ہے، تجھ کو مانتا ہے، ایک سجدہ نہیں کیا تو کیا ہوا؟ کہا کہ یہ مجھے نہیں مانتا ہے. اس لیے کہ اگر یہ مانتا تو میری بات کو بھی مانتا، میرے حکم کو بھی مانتا، ایسے مانتا جیسے ملائکہ نے مانا. تو ایسا ماننا مجھے پسند نہیں ہے کہ جو میری بات کو نہ مانے. تو حضور اگر آپ مسلمان ہیں اور کسی صحابی کو مانتے ہیں تو صحابی کا جو عمل ہے اس کے اوپر بھی آپ عمل کیجئے اور تب ماننا ہوگا کہ ہاں مانتے ہیں. اب سنیے، رسول اللہ کے قتل کا انتظام ہوا تو اللہ کے حکم سے انہوں نے کیا کیا کہ ہجرت کی. اور کہاں گئے؟ غور سے سنیے گا. اکیلے نکلے. بستر پر کس کو سلایا؟ کچھ بولیے تو ہم کو معلوم ہو کہ ہاں آپ کچھ سمجھ رہے ہیں. کس کو بلایا؟ علی کو سلایا. رسول چلے. رسول اللہ نے کچھ پیچھے آہٹ محسوس کی، مڑ کے دیکھا تو حضور کوئی دشمن نہیں تھا بلکہ رسول کا دوست تھا. کیسے آئے؟ کا دشمن چاروں طرف ہے، آپ اکیلے ہیں اس لیے میں آیا.
या रसूलुल्लाह आप इनको वापस कर दीजिए, वापस चले जाए। लेकिन रसूल ने अपने साथ में लिया, आओ मेरे साथ। अब साथ में चले। या रसूलुल्लाह आपने उनको वापस क्यों किया? आपने तो मना किया था कोई घर से नहीं निकले, मगर वो मोहब्बत में आपके आ गए, तो अब आप वापस कर दीजिए कि हम अकेले जाएंगे। रसूल ने वापस नहीं किया। एक बात कहूं, तवज्जो फरमाएंगे, हैं? रसूलुल्लाह ने वापस इसलिए नहीं किया कि काफिर जो है रसूल के कत्ल को करने के लिए तलाश कर रहे हैं। अगर वापस ये कर देते और हो सकता है वो काफिर इनसे मिल जाते और वो काफिर इनसे पूछते कि तुमने रसूल को देखा, तो हुजूर ये सच बोलेंगे इसलिए कि सिद्दीक है। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। झूठ बोल नहीं सकते, तो रसूलुल्लाह ने उनको अपने साथ में ले लिया ताकि काफिरों से मुलाकात न हो सके। और रसूल गार में चले गए, गार में चले गए। वहां जो है अब सहाबी रसूल कौन? सिद्दीक अकबर। अब गार में उन्होंने रोना शुरू किया। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, रोना शुरू किया। आज उलमा इस्लाम जो है उनकी वकालत करते हैं कि आपको मालूम नहीं है वो क्यों रो रहे थे। सांप के डर से नहीं, फिर क्यों रो रहे थे? कहा रसूल की मोहब्बत में और अली की मोहब्बत में। क्यों? कहा इसलिए कि वो रो इसलिए रहे थे कि काफिर तलाश कर रहे हैं, कहीं तलाश करते करते यहां ना आ जाए और रसूल को कत्ल कर दें। इनकी मोहब्बत में रो रहे। और उधर बिस्तर के ऊपर अली है और काफिर उधर गए जाएंगे, हो सकता है अली को कत्ल कर दिए गए हो। न कत्ल यहां हुए न कत्ल वहां हुए, लेकिन तसव्वुर शहादत में सहाबी रसूल ने रोकर बताया जो तसव्वुर शहादत में रोया जा सकता है तो शहादत के बाद जो है बदरजे औला रोया जाएगा। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। अब अगर कोई उस सहाबी को मानता है तो उसकी मानना ऐसा होगा कि जैसा वो कर रहे हैं वैसा आप कीजिए, ये मानना होगा। ये तो तमहीदन मैंने कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर दी और इंशाअल्लाह इन 10 रातों में आपके सामने बहुत सी बातें आएंगी। पहली चीज जो है कि अल्लाह ने इब्राहिम का इम्तिहान लिया और इम्तिहान में वो कामयाब हो गए। क्या समझे? ये कब इम्तिहान हुआ था? डेट मालूम है? अभी पिछला महीना गुजरा है 10 हिज्जा। क्या हुआ था? कुर्बानी। ये तो 10 जिलहिज्जा जो है ये ईद है गोश्त वाली, और रमजान के बाद जो ईद है वो सेवई वाली है। ये 2 ईदें तो याद हैं, लेकिन और भी ईदें हैं। ईद मबस है, ईद मुबाहला है और ईद गदीर है। इन तमाम ईदों में सबसे ज्यादा अहमियत जो है वो ईद गदीर है। उस दिन दीन मुकम्मल हुआ, नेमतें तमाम हुई, इसलिए कि बहुत अहमियत है उस ईद को। और ईद का लफ्ज सब इस्तेमाल करते हैं, माने क्या है? आजकल हमारा मजमा जो है वो ये, कोई शायर शेर पढ़ता है या कोई जाकिर बयान करता है तो माने कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन वाह 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 है। एक लफ्ज के माने पूछ ले तो वो माने नहीं मालूम, लेकिन जैसे सब ने हाथ उठा दिए वैसे ही
तो हुजूर ईद के माने क्या है? ईद के माने हैं पलटने के। पलटने के काहे से पलटे? यानी झूठ से सच की तरफ, बातें से हक की तरफ, बुराई से नेकी की तरफ। इंसान ये अहद कर ले कि अब इसके बाद जो है हम हर बुराई छोड़ देंगे, इसका मतलब ही मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि इंसान के लिए रोजाना ईद है। कब? कि जिस दिन इंसान कोई गुनाह न करे उसके लिए ये ईद है। तो हुजूर कुर्बानी काहे की होती है? जानवर की है क्या? बस यही? अच्छा, कुर्बानी जानवर की होती है? एक साथ बीमार पड़ गए, उनके 5 बेटे थे, एक बेटा बीमार पड़ गया। मैंने कहा ऐसा कीजिए, उसकी सेहत के लिए आपके 4 बेटे हैं, एक बेटे को कुर्बान कर दीजिए। या दूसरी मिसाल यह है कि उसके घर में एक बकरा है, वो बीमार पड़ गया, उसके 5 बेटे हैं। तो मैं उससे ये कहूं कि जनाब आप ऐसा कीजिए, बकरे की सेहत के लिए एक बेटे को कुर्बान कर दीजिए, होगा? ये सही होगा? नहीं। क्यों? इसलिए कि इंसान की सेहत के लिए बकरे को कुर्बान किया जा सकता है, सदका किया जा सकता है। क्यों? इसलिए कि बकरे से अफजल है इंसान, और इंसान से अफजल क्या है कि जो कुर्बान किया जाए। तो जो जानवर से बुलंद है इंसान, और इंसान से बुलंद है मजहब और दीन इस्लाम। इसीलिए इमाम हुसैन सलाम ने काहे के लिए कुर्बानी दी थी? इस्लाम की बका के लिए, इसलिए कि इंसान से बुलंद है दीन इस्लाम। अच्छा, एक कुर्बानी तो जानवर की होती है, और कुर्बानियों का नाम मालूम है? नहीं मालूम? सुनिए, एक कुर्बानी जानवर की है, एक कुर्बानी माल की है, एक कुर्बानी दौलत की है, एक कुर्बानी वक्त की है। ये तमाम कुर्बानियां हैं। मिसाल सुनिए, एक साहब के पास बड़ी दौलत है, क्या समझे? वो अपने लड़के को लंदन अमेरिका पढ़ने के लिए भेज सकते हैं, दौलत है। लेकिन उस शख्स ने ये सोचा कि हमारा बच्चा तो पढ़ जाएगा, लेकिन हमारे शहर के, गांव के बच्चे जो है जाहिल रहेंगे। तो उसने क्या किया? एक कॉलेज बनवाया, उस शहर के बच्चे जो है उसमें पढ़ना शुरू किए। तो उसने माल की कुर्बानी दी। तो जहां कुर्बानी दी जाती है वहां पर अच्छाइयां पैदा होती हैं, और जहां जज्बे कुर्बानी रुक जाता है वहां से बुराइयां पैदा होती हैं। अगर वो सोचे हम ही क्या मालदार हैं, हम ही पैसे वाले हैं, फला साहब क्यों नहीं बनवाते, फला साहब क्यों नहीं बनवाते, बस यहीं से कुर्बानी का जज्बा जो है वो रुक जाता है और इंसान में बुराइयां पैदा होती हैं। और मैं आपको बताऊं, एक डॉक्टर मेडिकल में है, उसकी 8 घंटा ड्यूटी है। कै घंटा? 8 घंटा। उसकी ड्यूटी खत्म हो गई, वो जा रहा है, एक मरीज आ गया, उसकी हालत बहुत खराब है। अब उस डॉक्टर की ड्यूटी नहीं है, मगर उस डॉक्टर ने क्या किया? अपने वक्त की कुर्बानी दी, उसका इलाज शुरू किया, खतरे के निशान से वो निकल गया। तो क्या हुआ? उसने वक्त की कुर्बानी दी तो एक जान बच गई।
इसी तरीके से कॉलेज में कुछ लोग पढ़ाते हैं, कुछ लोग गप मारते हैं। अब अगर ये सोच ले कि हम ही क्यों पढ़ाए, वो गप मारते हैं भी बैठे, तो क्या होगा? बुराई पैदा होगी। तो अच्छाइयां पैदा होंगी जहां जज्बे कुर्बानी जागता रहेगा, और बुराइयां पैदा होंगी जहां जज्बे कुर्बानी रुक जाएगा। बस अजीज़ान गिरामी, ज्यादा आपका वक्त लेना नहीं है, क्योंकि और भी जगहों पर मजलिसें हैं। मैं इंशाअल्लाह इन 10 रातों में आपके सामने बहुत सी बातें बयान करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आप ये समझ लीजिए कि ये आज़ादारी, ये मातम, ये मजलिस, बड़े बड़े शहंशाह गुजर गए, उन्होंने दौलत खर्च की, मजलिस मातम नहीं रुका। बड़े बड़े आलिमों ने फतवे दिए, उनके फतवे काम नहीं किए, और न ये कयामत तक रुकेगा। रोकने वाले बढ़ जाएंगे, मगर ये रुकने वाला नहीं है, इसलिए कि इसकी जिम्मेदारी इमाम हुसैन सलाम ने ली है। इमाम हुसैन सलाम की जिम्मेदारी है, अल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि हुसैन तुमने मेरा दीन को बचाया, मैं तुम्हारे नाम को बचाऊंगा। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए मगर तेरा नाम मिटने नहीं पाएगा। है कभी सुबह हुसैन और कभी शाम हुसैन, है कभी सुबह हुसैन और कभी शाम हुसैन, और बाकी है जहां में अब भी पैगाम हुसैन। आसमां की गोद में इतने सितारे भी नहीं, आसमां की गोद में इतने सितारे भी नहीं, हर ज़बां पर जितनी बार आ जाता है नाम हुसैन। सलवात भेज देना। बस एक जुमला कहना चाहता हूं, क्योंकि इब्राहिम के इम्तिहान की मंजिल थी, और इम्तिहान उन्होंने दिया कहा? बेटे को ले जाके, बेटे के गले पर छुरी चला, आंखों पर पट्टी, क्या समझकर कि मैं अपने बेटे के गले पर छुरी चला रहा हूं? है फितरी तौर से एक बाप के दिल में, एक तो अल्लाह इम्तिहान ले रहा है कि बेटा ज्यादा प्यारा है या मैं। इब्राहिम ने बताया कि पालने वाले तू ज्यादा प्यारा है, मेरा बेटा इतना प्यारा नहीं। लेकिन एक बाप होने की हैसियत से फितरी तौर से दिल में यह ख्याल आ रहा होगा कि काश मेरा बेटा बच जाता। यह ख्याल आया होगा है हर बाप के दिल में, क्योंकि इम्तिहान की मंजिल थी, ख्याल आया। तो अल्लाह ने इस ख्याल को महसूस किया और जनाब इब्राहिम बच गए, उनकी जगह पर दुम्बा के ज़बा हो गया। आज मुल्ला लोग एतराज करते हैं कि हुसैन ने अल्लाह के दीन को बचाने के लिए गए थे और सारा घर जो है शहीद कर दिया गया, अल्लाह देखता रहा, अल्लाह ने कोई मदद नहीं की। तो हुजूर, जैसे इब्राहिम के दिल में यह ख्याल था कि मेरा बेटा बच जाए, है अल्लाह ने बेटे को बचा लिया। हुसैन के दिल में यह ख्याल नहीं था कि मेरा अकबर बच जाए, मेरा कासिम बच जाए, मेरा अब्बास बच जाए, और मोहम्मद बच जाए, अली असगर बच जाए, बल्कि हुसैन के दिल में तमन्ना थी कि पालने वाले मेरा पूरा घर शहीद हो जाए, तेरा दीन बच जाए। तो अल्लाह ने इब्राहिम की तमन्ना को पूरा किया और यहां हुसैन की तमन्ना को पूरा किया कि दीन आज भी है और कल भी रहेगा। ये हुसैन की तमन्ना। सलवात भेज दूंगा। बस अजीजान गिरामी, इमाम हुसैन करबला की तरफ जा रहे हैं। तो रास्ते में इमाम हुसैन सलाम को घोड़े को किसने रोका? हुर ने। वो चाहता था कि करबला ना जाए,
लेकिन इमाम हुसैन सलाम रुके नहीं। करबला तारीखें गुजरी, शब आशूर गुजर गई। सुबह आशूर रात में इमाम हुसैन सलाम की तरफ जनाब हुर का कदम, जनाब हुर, उन्होंने, उनके कानों में आवाज आ रही है अलतश अलतश, हाय प्यास हाय प्यास। हुर ने अपने दिल में सोचा, एक ख्वाब भी देखा, सुना है, जाकिरीन बयान करते हैं कि हुर ने रात में ख्वाब में देखा कि कोई बीवी है जो हुर से कह रही है कि ए हुर, बता मेरे बेटे ने क्या तेरा बिगाड़ा था। हुर समझ गया ये कोई और नहीं है, ये हुसैन की दुखियारी माँ फातिमा जहरा है, इसलिए कि मैंने हुसैन के घोड़े को रोका था। बस एक मर्तबा हुर ने तय कर लिया कि मैं यहां नहीं रुकूंगा, मैं हुसैन की तरफ जाऊंगा। ए हुर, इधर पानी है, खाना है, सारा आराम है, दौलत है, सब कुछ है, कहां जा रहा है? काश ये सब कुछ है, लेकिन एक तरफ जहन्नम है और उधर जन्नत है। मैं जहन्नम की आग में जलना नहीं चाहता, मैं हुसैन के पास जन्नत में जाना चाहता हूँ। बेटे ने पूछा, बाबा क्या बात है, क्यों परेशान है? कहा, बेटा अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। कहा, फिर देर का है? कहा, दिन का उजाला हो जाए, उजाले में जाऊंगा। अगर अंधेरे में जाऊंगा तो उमरे साथ शिमर ये सब कहेंगे कि रात के अंधेरे में निकल गया, लेकिन बोल के जाऊंगा कि मैं उधर जा रहा हूं। और जब बोल के गए हैं तो उन्होंने यही कहा कि क्या माल दौलत नहीं लेना? उन्होंने कहा कि मुझे माल दौलत की जरूरत नहीं है, मैं हुसैन के कदमों में जा रहा हूं। बेटा भी चला, गुलाम भी चला। कहा, बेटा ऐसे नहीं, बल्कि मेरा चेहरा छुपा दो, मुझे शर्म मालूम होती है। चेहरा छुपा लिया। उसके बाद अब चल रहे हैं हुसैन की तरफ। एक मर्तबा क्या हुआ, हुर के बेटे ने आवाज दी, अल्लाह अकबर। कहा, बेटा क्या बात है? कहा, असहाब आ रहे हैं इस्तकबाल के लिए। आगे बढ़े। कहा, दूसरी मर्तबा तकबीर की। कहा, कौन आ रहा है? कहा कि जनाब अली अकबर और अब्बास आ रहे हैं। और आगे बढ़े, एक मर्तबा आवाज दी, अल्लाह अकबर। हुर ने पूछा, बेटा अब कौन आ रहा है? कहा, इमाम हुसैन खुद आ रहे हैं। कहा कि जैसे आए मुझे बता देना। जैसे इमाम हुसैन आए, हुर ने क्या किया, हुसैन के कदमों में सर रख दिया। कहा, आका मेरी खता माफ कर दीजिए, मैं गुनहगार हूं। इमाम हुसैन सलाम ने हुर को सीने से लगाया और कहा, तुम्हारी माँ ने के इतना बेहतरीन नाम रखा, तुम दुनिया में भी आजाद हो और आखिरत में भी आजाद हो। एक मर्तबा हुसैन ने सीने से लगाया, लेकिन हुर कहता है कि मौला आपने तो माफ कर दिया, लेकिन जब मैंने आप पे घोड़े की निजाम पकड़ी थी तो महमे से किसी बीवी के रोने की आवाज आई थी, लिहाजा आप मुझे ले चलिए, उस बीवी से माफी मांग लूं। जनाब इमाम हुसैन सलाम जनाब ज़ैनब के पास लेकर गए और जनाब ज़ैनब के पास इमाम हुसैन ने फरमाया कि बहन वो आया जिसने मेरे घोड़े को रोका था, माफी मांगने आया। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने फरमाया कि ये भैया, और उससे कह दो ऐसे वक्त मेहमान बन के आए हो, हमारे पास एक गिलास पानी भी नहीं है तो तुम्हारी मेहमान नवाजी करो, अजरकुम अल्लाह। इमाम हुसैन फरमाते हैं, तुम आराम करो। कहा, नहीं मौला अब आराम का वक्त नहीं है, आप मुझे इजाजत दे। कहा, नहीं तुम आराम करो। इमाम हुसैन सलाम जनाबे हुर का जवान बेटा पहले गया। जवान बेटा गया, लाया, एक मर्तबा आवाज दी, बाबा को आवाज दी, बाबा जल्द आइए। हुर यहां से तलवार लिए हुए और मैदान की तरफ चले। बेटा कहाँ हो, कहाँ हो? एक मर्तबा बेटे के पास इमाम हुसैन सलाम
क्या किया कि हुर के बेटे का सर अपने जानू के ऊपर रखा, आवाज देते हैं हो इधर आ जाओ, तुम्हारा बेटा इधर है। जब हुर पहुंचे हैं तो हुर ने मंजर देखा, हाथों को जोड़कर अर्ज की, मौला मौला आपने क्यों तकलीफ की, आप भूखे प्यासे हैं, कहा बेटा जवान बेटा मर जाए बाप आए और मैं ना आऊं, मैं कहूंगा कि ए हुर तेरा बेटा सब शहीद हुआ तो इमाम हुसैन पहुंच गए, लेकिन इमाम हुसैन सलाम का कलिया जवान अली अकबर बरसी पे जब खा चुका तो कोई नहीं था कि जो सराहने जाता, और जाने के बाद अली अकबर को उठाता। परवरदिगार इस जिक्र को कबूल फरमाना, तमाम अज़ादारों की हिफाजत फरमाना, सारी दुनिया में जहाँ जहाँ भी अज़ा खाने हैं अज़ादार हैं सबकी हिफाजत फरमाना, दुश्मनों के शर से महफूज रखना, बीमारों को शफा अता फरमाना, इमाम के ज़हूर में ताजिल फरमाना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस